Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So happy Onam to each one of you. May this Onam bring prosperity in life of each one of us. God bless us. Now, in this video, we will discuss the developments that is happening around us and that is going to influence the exams. Now, Telangana government is conducting various exams today. Despite COVID situation, by taking precautions, they are conducting the exam. Another news is Railway Board to meet this week to discuss running of trains. This information is provided by one of our subscriber. His father is working in railways. So he sent me a WhatsApp message telling that some news may come on running of railways also during this week. So fingers are crossed. It will solve problem of many of our subscribers. Another news is MP government to provide free transportation for NEET JEE aspirants. Tamil Nadu interstate bus services starts. Jharkhand also resumes the bus services. Maharashtra interstate bus service is likely to start from September 7th. Bihar to relax movement after September 6th. So if we look at all these news, they are pointing out towards unlocking of economy and allowing movement of people interstate through various public transport services. Even Kochi metro is also starting, Bangalore metro is also starting, Delhi metro is also starting. Some local trains may also be allowed to move as per the decision of railways that may be announced during this week, that is expected. So from all sides, the signal is coming that exams of NEET and JEE will happen on time. One examination is happening that was planned for August 31st. That is also happening, that we discussed in our one of the earlier videos. So the signal is very clear. Government is determined to hold the examinations. And unlocking as far as transportation is concerned, that is happening. But the concern of candidate about COVID still remains, because yesterday our country hit new cases of 80,000, that is highest in the world. So in this area also India has created a world record yesterday. 80,000 cases in a single day. Now we cannot say US is ahead of us or Brazil is ahead of us. India is ahead of everyone as far as new cases is concerned. And that shows that there is no remedy that is in sight in near future. And that's why I think government is now taking steps. Let's face it and go for the examination. So my advice to all of you is, despite my sympathies with the people, those are not having transportation facility or having some fear about COVID, but we have to face the reality. All these steps points out that exams may happen on scheduled date that is announced by IBPS, that is September 12th, and we should be ready for that. You should prepare for September 12th examination, attempt around 6 mock tests on alternate day basis. I have already provided you a link of very good mock test in the description and comment column. Subscribe this mock test if not done till now, and improve on your weak areas.
Thousands of our subscribers are showing improvement day by day, and I am posting their screenshot on our wall just to encourage them and to encourage you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज ओणम का दिन है, बहुत शुभ दिन है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि ये जो त्यौहार है हम सबके जीवन में खुशियां लेके आए, नई खुशियां लेके आए, और आप सबको इस वर्ष में जॉब मिले और प्रॉस्पेरिटी आए। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्या घटनाक्रम चल रहा है और उसका एग्ज़ाम पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। पहली चीज़ है, तेलंगाना गवर्नमेंट आज एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है जिसमें 80,000 से अधिक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नंबर में भी करेक्ट, और क्योंकि मेरे को किसी कैंडिडेट नहीं भेजा है तो मैं इस नंबर की अथेंटिसिटी आपको नहीं दे सकता, बट हाँ, तेलंगाना में आज एक अच्छे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम होने जा रहा है। दूसरे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनके फादर रेलवेज़ के अंदर है, उन्होंने मैसेज करके बताया कि सर, रेलवे बोर्ड इस हफ्ते में एक मीटिंग करने जा रहा है और जिसके अंतर्गत कुछ रूट्स के ऊपर ट्रेन के शुरू होने की पूरी संभावना है। तो जो लोगों को वरी है रेलवेज़ की कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है उसका भी समाधान कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाए। इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का फैसला किया है एनईईटी एंड जेईई कैंडिडेट्स के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इंटर स्टेट बस सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने भी रिज्यूम कर दी हैं बस सर्विसेज। महाराष्ट्र में इंटर स्टेट बस सर्विसेज 7 सितंबर के बाद से शुरू हो जाएंगी। बिहार के अंदर जो मूवमेंट की रिलैक्सेशन है 6 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि एक एक करके अब स्टेट इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको ये मूवमेंट स्टार्ट करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया कराना है। इसी तरह हम देखें कोची, बेंगलोर, दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो चालू हो जाएगी। कुछ जगह लोकल ट्रेन शुरू होने की भी संभावना है इस हफ्ते के अंदर। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि सरकार दृढ़ है इस बात पे कि उसने ये एग्ज़ाम्स कराने हैं सितंबर के अंदर। हालांकि अगर कल का हम आंकड़ा देखें तो 80,000 केस इंडिया में एक ही दिन में बढ़े हैं। ये अपने आप में विश्व में हाईएस्ट है, एक तरह का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आल्दो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गलत जगह है, नहीं होना चाहिए, पर जो सच्चाई है वो भी सबके सामने है। अब हमारे नंबर ऑफ केसेस पर डे लगभग 21 दिन से लगातार पूरे विश्व में हाईएस्ट आ रहे हैं, और ये यूएस और ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। तो अगर इसी रफ्तार से ये केसेस बढ़ते हैं तो नेचुरल है कि चिंता का विषय तो है। तो जो काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में चिंता है कि इस कोविड की स्थिति में कैसे एग्ज़ाम दें, अगर हम बीमार हो गए तो कौन जिम्मेवार होगा, वो भी हम गलत नहीं कह सकते, वो अपनी जगह सही है। पर दूसरी जगह ये भी सही है कि जो सामने हो रहा है अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम ही पिछड़ेंगे। अगर एग्ज़ाम हो जाता है और हम साइकोलॉजिकली तैयार नहीं है उसमें बैठने के लिए, या हमारे पास सुविधाएं नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए, तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा, हम ही रह जाएंगे। तो यदि कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, यदि आप कोई उसका रास्ता निकाल सकते हैं तो आपको ज़रूर निकालना चाहिए, ये मेरी सलाह है। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम होने हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। तो इस डिस्कशन में पढ़ने की बजाय कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी पॉइंट आउट कर रही हैं कि एग्ज़ाम होगा। तो अगर एग्ज़ाम होगा तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। उसके लिए मैंने आपको अच्छा मॉक टेस्ट भी सजेस्ट किया हुआ है, और हज़ारों की तादाद में हमारे सब्सक्राइबर्स ने उसको ले भी लिया, और वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहे हैं, और वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। वो मैं आपके फ़ायदे के लिए इस चैनल के वॉल पे भी लगा रहा हूँ। उससे उनको भी इंकरेजमेंट मिल रही है, बाकी लोगों को भी इंकरेजमेंट मिल रही है कि यदि इनमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है तो मेरे में क्यों नहीं आ सकता। देखो, जो लोग कंपटीशन लूज़ करते हैं वो 1, 2, 3 नंबर से ही करते हैं।
तो यदि हम अपने में इम्प्रूवमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो नेचुरल है हमें जॉब मिल जाती है। उसका साधन मैंने आपको बता दिया, अच्छा मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में आपको दे दिया। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है ये। फिर इसको करने के बाद अपनी कमियां ढूंढिए और जो आपकी कमी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। जो आप बचे हुए हमारे 12 दिन हैं, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। आप देखो आखिरी दिन अगस्त का, करते करते अगस्त भी निकल गया। मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था, कैसे 5 महीने निकल गए। फिर भी मेरे चैनल ने आपको मोटिवेटेड रखा 5 महीने। कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया लोगों को, बट हमने आपको इनकरेज रखा तो उससे फ़ायदा क्या हुआ। आज हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं फुल्ली तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए और नौकरी पाने के लिए। कुछ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, कुछ के मन में डर आ रहा है कोविड का, वो एक अलग बात है। पर जहाँ तक तैयारी का सवाल है, आज हम सबसे आगे हैं। क्यों सबसे आगे हैं? क्योंकि हमने एक भी दिन खराब नहीं किया। हमने इस बात के लिए नहीं लगे रहे कि क्या होगा क्या होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। हम आपको बताते रहे नहीं, एग्ज़ाम हो सकते हैं 2020 में भी। और आप देखिए सितंबर में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज भी एग्ज़ाम है, इस महीने भी एग्ज़ाम हुए हैं। यूपी के अंदर बीएड का एग्ज़ाम हुआ, राजस्थान में भी एग्ज़ाम हुए। तो आप देखो कि जो लोग ये कह रहे थे 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सारे गलत साबित हो गए। क्योंकि कोई इकोनॉमी रुक नहीं सकती है। इवेंट्स आएंगे जाएंगे, उसको हमें फेस करना है। उससे हम चीज़ों को रोक के नहीं बैठ सकते। कोई भी देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमें इस बात को समझना है। एक तरफ हमें रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार कैसे मिलेगा? अगर हम कंपटीशन में बैठेंगे, उसको पास करेंगे। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो कैसे रोजगार मिलेगा? और कितने लोग आपके सामने ही हैं। आप भी कई सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि सर मेरी भी नौकरी चली गई, मेरी भी नौकरी चली गई। कुछ प्राइवेट सेक्टर में थे, कुछ हॉस्पिटैलिटी में थे, कुछ होटल इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे। अब आप उन लोगों की दिशा देखिए कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में थे और आज आउट ऑफ जॉब हैं, वो भी उन लोगों की लाइन में खड़े हो गए हैं जो बेरोजगार हैं। आप देख ही रहे हैं, अपने सामने हैं। तो मेरा कहना ये है कि इन चीज़ों में ध्यान हटा के अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखिए, वही आपको जॉब दिलाएगा। देखो वैकेंसीज घटती जा रही है और कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ जॉब ही नहीं आ रही है। कितनी निराशा वाली बात है। मगर अगर जहाँ जॉब आ रही है, कम से कम उसके लिए तो हमें तैयार हो। बैंकिंग में आ रही है, इंश्योरेंस में भी आएंगी, उसकी तैयारी हमें करते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।